Thank you, Ashok Naik sir and Amol Jamdade. Welcome back to second Diesel Boys Trophy 2024. Match between Rashtroi cricketers. Khulwai is chosen to field first and straight away. One bounce over the ropes. Requesting both the teams to please send your 12th man in the commentary box. If 12th man is not sent, then will be given penalty. So Krishna bowling from the Sacred Heart of Jesus School end. Nicely bowled that time, short on his length, but that's gone over him. And maybe, yes, the umpire checking. He has told the third umpire to have a look. Aditya along with Lakshman. Lakshman bit hesitant to reach the non-striking end. Let's see if he has made it. And that's gone. He's gone. He is well short of his crease. So Aditya has to head back for just 5 to his name. It's 5 for 1. In fact, it's Lakshman who has to head back without scoring, without facing a single delivery. He's run out. MSC Mopa, Tamose Ugwe have lost their first wicket. It's 5 for 1. So new man is Vishram. He'll be at the non-striking end. First a boundary, then a run out. Swing and a miss. Looking to go downtown, missed it completely. Full toss delivery. Played it down to mid-off. And will just be a single taken. Score moves to 6. Brings the new man in. Vishram on strike. A.K.A. Kaka. Short pitch delivery again, straight to cover this time. Chance of run out. Throwing it to the wrong end. Maybe at the bowler's end would have been much tighter, but couldn't quite. Another single taken. Vishram gets off the mark with that single. Again looking to go big. Missed it completely. Dot delivery to end the over. After completion of 1, it's 7. 7 for 1 after 1. Mopa. Change in bowling, it will be Utkarsh. Swing missed, dot delivery. Operating from the Anjuna post office end.
That's big. That's out of here. Huge 8 for 6 over cow corner. Score moves on to 13 with that maximum. You bowl shot, you travel. And you travel a fair bit here in Anjuna. Again shot, this time in the air. Fielder won't be able to cut it off. That's 4. One bounce over the ropes. First a maximum, then a boundary. 3 deliveries in this Utkarsh over. Operating from the Anjuna post office end. Score moves to 17. That's gone. Utkarsh has the last laugh. First a maximum, then a boundary, and now he sends Vishram back in the pavilion. It's 17 for 2. Mopa. Newman and Rama. In case if you have joined just now, then this is second All Goa Panchayat and Municipality level tennis ball cricket tournament 2024 organized by Diesel Boys Anjuna here in Anjuna. Match between MSC Mopa, Thomas Eugwe and Rashtroy Cricketers Kolwai. Rashtroy Cricketers Kolwai winning the toss, deciding to bowl first. Currently, MSC Mopa are 17 for 2. In the air again. Will fall in no man's land. No, not quite. That fielder coming in from the square leg boundary has taken the catch. It's 17 for 3. Short pitch delivery. Wanting to go over mid wicket, over square leg. Ended up skying it. And the fielder came in from the deep and took that catch. Wonderfully taken. It's 17 for 3. Mopa. Newman and Dinesh. And with those dot delivery 6-4, wicket. Utkarsh is on a hat-trick. Let's see if he can get a hat-trick. Will be the first in this edition to get a hat-trick. Another left-hander. Looking for the reverse. This time he connects. And he connects pretty well. Hat-trick delivery all right. I am not here to waste any time. Gets a boundary straight away. Score moves to 21. It's 21 for 3 after 2. Mopa. Change in bowling from the Sacred Heart of Jesus School end. It will be Yashwant. 21 for 3. In some sort of trouble at the moment. The MSC Mopa. Aditya on strike. Field is now spread out. Man at the backward square. Fielder at point. Wasn't there. Man came in covers. And a wayward throw. But still, a single has been taken.
Score moves to 22. Yesterday it was Bhumika Levankarnka reaching the semi-finals. Let's see which team comes on top here. We'll decide in the evening which team will meet them for that place in semi-finals. Pulled away. And pulled away for 4. You bowl shot. And you go the distance. Open wide spaces on the onside. 26. Score moves to 26. 26 for 3. 26 for 3. Dinesh straight away making his intentions clear. First a boundary on the hat-trick delivery, and now again short delivery dispatched with disdain. Again trying to replicate the same hit. Missed it completely. Dot delivery. Officials in this particular game, Vaman Mayekar. Along with him at the square leg region is Dinesh Naik, both very experienced umpires. We also got Sadgiri Naik as the television umpire. Nicely played, straight to cover, chance of run out. Oh, a better throw would have had the batsman in danger, but not to be. Maybe just over the stumps. 27. Would have been close, but not to be. Score moves to 27. Fantastic ground this Tembi cricket ground, especially minted by the Diesel boys Anjuna as well. Nicely played. It's coming in our direction, and that will be boundary. That's gone one bounce over the ropes for 4. Score moves to 31 with that boundary. Aditya gets that 4. And for a time being, Nitesh Yemkar was interested. One of our cameramen all the way from Sangam. AB25 Sports Network doing a pretty fine job with all the live images that are captured. Again, shot. Fielder won't be able to cut it off. That's another boundary. 2 boundaries in succession to end the over. After completion of 3, it's 35. 35 for 3. After 3 overs. Mopa. Talking about the lights. Members of Diesel Boys and Juna. Big thank you to Vinayak Murgaonkar. Usually we see those lights in action for the ASL Anjuna Super League. But definitely in some span of time, maybe the semi-final, final, or could be the future tournaments we'll see under lights here in Anjuna. So Krishna will be bowling from the post office end. 31, 35. In fact, 35 for 3 after 3. Swing missed. In fact, that's wide. Extras. Score moves to 36. Match coming up next. Winner of this game will take on Riddhi Warriors Sheldon. And that's for this time for Dinesh. Score moves to 39. This pair is looking good at the moment. In fact, the score moves to 40. We had a extra earlier and now a boundary. Dealing in boundaries, these two. Somebody needs to put a halt on this onslaught.
Played in the covers, in fact, down the ground. Straight to the fielder, will just be a single. Score moves to 41. Oh, just missed. Maybe would have gone onto the stumps someday, but not today. Swing missed. Dot delivery. Just a quick reminder to all the viewers not to litter anywhere. Keep your surroundings clean and green. Keep Anjuna green and clean. Well, all the water, whatever has been provided, drinking water, packaged drinking water, is sponsored by Warren Braganza and Rupesh Nayak. Thank you, sirs, for your valuable, invaluable contribution for this wonderful tournament. Nicely played. Back to the point. By the time the fielder comes, collects and throws it back, 2 more runs added. 2 runs to endure after completion of 4. It's 43. 43 for 3 after 4 overs. Moppa. Change in bowling from the Sacred Heart of Jesus and it will be Meet. Let's see if Meet can meet the requirement of his team. Reverse sweep, missed completely. Chance of run out or not throwing it. And rightly so. The fielder who would have backed it up was at deep mid wicket. One more run added. Score moves to 44. 4.1, 44 for 3. Exactly 11 deliveries left. Let's see how much they can amass. The team from Moppa. They're going to send the team from Kolware back home, or will they be sitting in the airplanes and moving to Moppa? Well, time will tell how this game pans out. That's big. That's humongous hit. The fielder was interested, but he was interested in just looking at the ball, which will be traveling over his head for a maximum. And with that, 50 up for MSC Moppa Tamose Ugue. 50 for 3. Short pitch delivery, and again gets dispatched over cow corner for 6. This time short, but again down to cover region will just be 1. The fielder from back to the point came in and threw it back. Thank you to all those who are supporting us in giving balls, throwing them back. Also Dumba. Dumba is also there. Hard working Dumba. That's wide. Extras. Bit wavered.
Short pitch delivery in the air. Chance field coming in. No, not quite. Will just be a single. Score moves to 53. 53 for 3. Penultimate over in progress. Exactly 8 deliveries left. Let's see if they can go towards that 70-75 mark from here on. Again, that's big. That is huge. That's gone in the parking lot. Can get a delivery. No, he can't. That's even further. That's gone out of the park for a maximum. Score moves to 65 with that maximum. 65 for 3. And Aditya is on a roll. After completion of 5 with 65 for 3. Moppa. Change in bowling for the final over. Sada has been given the ball from the post office end. 65 for the loss of 3 in 5. Last 6 deliveries. Flat batted along the carpet. Bit of fumble from the fielder and will be a couple of runs. Score moves to 67. As I was talking about 70-75. Maybe 80-85 is on the cards now for the team Moppa. Full toss delivery. Played over back to the point and it's gone over his head. That's 4. And the umpire has referred for the third umpire to just have a look at it. Was just above the waist height or was it just marginal? We'll have a look. Meantime, it's a boundary. Let's see if one more run is added and if we have a free hit as well later. Sadgiri Naik is having a close look at the proceedings. He's busy with the producer. And it's a no ball, given as a no ball, above the waist height. So this will be a free hit. Might have just slipped out of his hands. Score moves to 72. Free hit time. Down the ground. And for 6. Score moves to 78 with that maximum. Down on one knee from this plot to the other plot. Score looks a bit rigid now. 78 on the board. Dinesh with the onslaught. Lets that one go and that will be wide. The bowler is under pressure. He just bit wavered with his line in length. 79. First a couple
then a no ball, which was hit for 4, then a 6, and now a wide. Swing missed. Chance of run out, gone. Maybe would have waited there, but it has dismissed Aditya for it. And straight away he is apologizing for his teammate. With his teammate, in fact, Aditya is gone. It's 79 for 4. Well played innings of Aditya coming to an end. He's gone for 36. Bulk of the scoring has been done by him. A well set batter. Opener is gone for 36. It's 79 for 4. New man in Prathamesh at the striking end. Still 3 deliveries left in this innings. Last 3 deliveries, 79 for 4. MSC Mopa, Tamose Ugwe. Last 3 deliveries. Swing missed. Chance of run out. And Prathamesh will have to sacrifice his wicket to get that man back on strike. Another wicket gone. So half side done packing of the Tamose Ugwe. 79 for 5. Still 2 deliveries left in this innings. Final 2 deliveries. Rashtrohi cricketers Kolwai winning the toss, deciding to bowl first. Currently find themselves in a bit of a tangled position as 79 looks pretty decent enough score. New batsman is Saish. He'll be at the non-striking end. So Dinesh has accumulated the strike. He's back on strike. Let's see if he can make some difference on these final 2 deliveries. Yes, he can. That's gone. Gone into the home rose garden. Out of here. Score moves to 85 with that maximum. Again, bowling full in his arc. And he just thumps it over mid-wicket for a maximum. How about that for a shot? Last delivery coming up. What is the bowler thinking now? Where can I bowl this? This time in the air, Chansfield coming in. Takes it easily. Yashwan takes that catch. And with that, it's 85 for the loss of 6 in 6 overs for MSC Mopa Tamose Ugwe. In the run chase, Rashtrohi cricketers Kolwai will be looking to get 86. 86 India 6. We'll have a breather and we'll be joined by Ashok Naik sir in the commentary box.
राष्ट्रवादी क्रिकेट टीम कोलवाड़े, प्लीज आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कीजिए। राष्ट्रवादी क्रिकेटर्स, कोलवाड़े क्रिकेट टीम, थैंक यू श्याम, धन्यवाद। तो पहला ओवर लेकर प्रथमेश पावर प्ले में, और टारगेट कितना 86 ना, तो टारगेट है मैच को जीतने के लिए 86, 86 रनों का टोटल टारगेट है मैच को जीतने के लिए। बहुत अच्छी इनिंग खेली, 34 रन बनाए दिनेश ने, 4 चौके और 2 छक्के लगाए, और उससे पहले 36 रन बनाए शुरू में आदित्य ने, 3 चौके और 3 छक्के लगाए, और उसी के बदौलत टोटल 85 और टारगेट 86 का प्रथमेश पावर प्ले में पहला ओवर लेकर सामने रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्ग पर, और सामने है स्ट्राइकर राजेश और नॉन स्ट्राइकर अमन। पहली गेंद हल्के से कलाई का उपयोग किया, मोड़ा गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। फुल टॉस गेंद स्विप किया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, और गेंद चलेगी डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा पर, सिक्सर 6 रन के लिए। अमन के बल्ले से निकला एक बड़ा शॉट, जो जीतेगा इस मैच को वो खेलेगा आने वाला मैच रिद्धि वर्गीस शेल्डेम क्रिकेट टीम के साथ वो मुकाबला होगा, और देखना होगा यह मुकाबला किस तरह से होता है मैदान पर। राजेश और राजेश के साथ अमन ये जोड़ी, और प्रथमेश पावर प्ले में अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद इस बार आगे निकलकर खेला, कवर पर फील्डर, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते अपने क्रीज में सुरक्षित एक सिंगल पूरा करते हुए, और इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचा 8 रन पर। फुल टॉस, क्या मौका बनेगा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर? जी नहीं, फील्डर के सर के ऊपर से डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा से बाहर। यह दूसरा बड़ा शॉट इस ओवर में। 14 पर टोटल आगे बड़ा स्कोर, दोनों बल्लेबाज 7-7 पर, दोनों बल्लेबाज एक बड़ा शॉट जो लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद मिली उसी का फायदा उठाते हुए, और प्रथमेश अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ऑन साइड पर फिर से एक बार देखना होगा डीप मिड विकेट पर, और गेंद चलेगी मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। 20 पर पहुंचा पावर प्ले में, आक्रामक शुरुआत, टारगेट है 86 का, 86 रनों का, और उसको जवाब देते हुए राष्ट्रवादी क्रिकेटर्स कोलवाड़े क्रिकेट टीम एक आक्रामक शुरुआत मैदान पर करती हुई पहले ओवर में, अब तक खेल जारी है पहले ओवर का, 20 रन टोटल। छोटी गेंद हुक्का इस बार फाइन लेग बाउंड्री पर, और एक बार जोरदार शॉट, और गेंद चलेगी डीप लॉन्ग लेग पर, सिक्सर 6 रन के लिए। महंगा ओवर समाप्त हुआ प्रथमेश का। तो टोटल स्कोर 26। बॉलिंग में परिवर्तन, शिवम आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, एक अच्छा टोटल है, लेकिन सामने एक अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग करनी पड़ेगी एमएससी मोपा तांबो से उगम क्रिकेट टीम को, क्योंकि पहले ओवर में आक्रामक शुरुआत हो चुके राष्ट्रवादी क्रिकेटर्स कोलवाड़े क्रिकेट टीम की बिना किसी नुकसान से 26 रन, और बॉलिंग में परिवर्तन, शिवम आ चुके गेंदबाजी पर। आगे निकलकर खेला गेंद हवा में, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई। ऑफ स्टंप पर ये आगे निकले थे, थोड़ा सा दूर से खेला ये शॉट,
और कैच का मौका बना, एक अच्छा कैच सफलता की तलाश में थी विश्राम जो एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग कर रहे थे, और एमएससी मोपा तांबो से उगवेंग क्रिकेट टीम को मिलती हुई पहली सफलता। एक अच्छी शुरुआत राष्ट्रीय क्रिकेटर्स कोलवाड़ी क्रिकेट टीम की, टारगेट 86 का और टोटल स्कोर हो चुका है 26, लॉस ऑफ 1 विकेट। नए बल्लेबाज मैदान पर सदानंद आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 26 रन 1 विकेट पर खेल जारी है दूसरे ओवर का, और शिवम सफलता दिलाते हुए, एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपने टीम को अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करना चाहते थे, जो आपके लिए डगआउट है दोस्तों, उस डगआउट में ही आप बैठिए। जो आप कुर्सी इधर उधर लेकर बैठे, आपसे रिक्वेस्ट है डगआउट में ही बैठिए। डॉट गन के साथ एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर शिवम अगली गेंद लेकर। कट के ऑफसाइड पर गेंद हवा में, लेकिन पॉइंट के फील्डर से दूर। और जब तक कवर पॉइंट पर गेंद को उठाते थ्रो पहुंचता, एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला सदानंद ने और स्कोर पहुंचा 27, लॉस ऑफ 1 विकेट। 27 रन 1 विकेट पर खेल जारी है दूसरे ओवर का, जो पावर प्ले का ओवर चलता हुआ मैच का। शिवम अपने बॉलिंग मार्ग पर। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद जाके शरीर पे टकराई, कोई रन नहीं। 19 पर बल्लेबाजी कर रहे राजेश, आउट होकर वापस 7 पर अमन, एक छक्का लगाकर सदानंद 1 पर, और अपने बॉलिंग मार्ग पर शिवम अगली गेंद लेकर। हल्के से टैप किया पॉइंट पर, फील्डर मिस फील्डिंग, 1 रन दूसरे के लिए निकले। थर्ड मैन के फील्डर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 29, लॉस ऑफ 1 विकेट। 29 रन 1 विकेट पर टारगेट है 86, यानी 86 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। स्विच इट, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर हवाई फायर, और गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 35 रन टोटल। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, और पावर प्ले की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 35, लॉस ऑफ 1 विकेट। 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर मुकाबला जारी है एमएससी मोपा तांबो से उगवेम और राष्ट्रीय क्रिकेटर्स कोलवाड़े, इन 2 टीमों के बीच में। पहले बल्लेबाजी की एमएससी मोपा क्रिकेट टीम ने बनाए 85 रन और टारगेट 86 का राष्ट्रीय क्रिकेटर्स कोलवाड़े क्रिकेट टीम के सामने। जो जीतेगा आने वाला मैच खेलेगा रिद्धि वॉरियर्स शेल्डेम क्रिकेट टीम के साथ। फील्डिंग में परिवर्तन, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, अब फील्डिंग में बदलाव हो चुका है मैदान पर। दोनों बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक, खास करके राजेश बड़े शॉट लगा रहे हैं मैदान पर। अब तक 4 छक्के लगा चुके हैं, और बॉलिंग में परिवर्तन, श्रेयस आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए रोड एंड से। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर स्ट्राइक पर सदानंद, छोटे गेंद पोल किया, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री से फील्डर के सर के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। मिले 6 रन स्कोर के खाते में, 41 टोटल आगे बढ़ता हुआ 41 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। ओ फिर से एक कमजोर गेंद, पुल किया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग पर लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का लगता हुआ गेंदबाजी श्रेयस के गेंदबाजी पर, और इन 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 47,
लॉस ऑफ 1 विकेट। 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक अच्छा टोटल जरूर बनाया, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी वो नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं छोटी गेंदें मिल रही है, शॉर्ट पिच गेंदें, और बल्लेबाज बहुत ही बड़े शॉट लगा रहे हैं। ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट बाउंड्री से आते फील्डर, एक सिंगल तो बनेगा। स्कोर में गेंद को उठाते फील्ड करते 48-48 पर पहुंचा टोटल स्कोर। नॉन सेकंड पर सदानंद अब मात्र स्ट्राइक पर आ चुके हैं राजेश। 27 पर खुद के व्यक्तिगत 4 छक्के लगाते हुए सामना करते हुए आने वाली श्रेयस की अगली गेंद का। छोड़ा, जाने दिया। इस बार अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर यह गेंद, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक डीप कवर पॉइंट, बाउंड्री पर एक लॉन्ग ऑफ पर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर एमएससी मोपा तांबो से उगवेम क्रिकेट टीम के। छोटी गेंद, ये मौका बनेगा। स्क्वायर लेग पर फील्डर, और सफलता मिलती हुई दूसरा विकेट चला गया राष्ट्रीय क्रिकेटर्स कोलवाड़ी क्रिकेट टीम का। एक अच्छा कैच, स्कोर हो चुका है टोटल 48, लॉस ऑफ 2 विकेट। 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर रामा फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने कैच को लपका, लेकिन एक अच्छी इनिंग अपने टीम के साथ। जो दूसरा विकेट उसी बीच में साझेदारी बनी, और दोनों के बीच में 4 छक्के लगाए अपने इनिंग में, और 27 रन बनाए राजेश ने। बहुत ही अच्छी पारी, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं उत्कर्ष, जो स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। स्कोर 48-48 रन 2 विकेट पर। इस बार छोड़ा, जाने दिया। एक डॉट गेंद, ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 48। 86 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। 3 ओवर का खेल बाकी है, 18 गेंदों का, 18 गेंदों में 38 रन। मैच को जीतने के लिए 18 गेंदों में 38 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से आइए, माइक्रोफोन पर जुड़ जाते हैं अमोल जमदाड़े के साथ। 18 चेंडूत 38 धावा, 18 गेंदों में 38 रन। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से शिवम आ चुके, खुद का दूसरा ओवर, टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए। स्विच एट इस बार थर्ड मैन बाउंड्री पर, लगभग वाइडिश गली पर गेंद बाउंड्री लाइन पर निकली। गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 34 रनों के अभी भी जरूर है, 34 रन बनाने के लिए खेल बाकी है 17 गेंदों का। स्कोर आगे बढ़ा, 50 से आगे निकली। एमएससी मोपा तांबो से और राष्ट्रीय क्रिकेटर्स के बीच में जारी है मुकाबला। स्कोर टोटल 52। अच्छा शॉट इस बार कारपेट के साथ खेला, और जब तक वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 53 लॉस ऑफ 2 विकेट। 53 रन 2 विकेट पर। बल्लेबाज आ चुके हैं नए बल्लेबाज उत्कर्ष। यह बड़ा शॉट, क्या मौका बनेगा कैच का? लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पर अपने आप को जज किया श्रेयस ने, और सफलता मिलती भी तीसरा विकेट चला गया। 53 रन 3 विकेट पर। 53 लॉस ऑफ 3 विकेट। और रिद्धि वॉरियर्स शेल्डेम क्रिकेट टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। श्रेयस ने कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। शिवम गेंदबाजी कर रहे, और नए बल्लेबाज रितेश आ चुके जो न्यू बैटर मैदान पर। अच्छा मुकाबला हो रहा है मैदान पर। स्कोर बोर्ड पर टोटल 53, 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
आते आते पहली गेंद पर एक अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। स्ट्राइक पर आ चुके हैं न्यू बैटर रितेश नाइक। शिवम अपने बॉलिंग मार्ग पर खुद का दूसरा और टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए आने वाले 2 ओवर का खेल मैच का अभी भी बाकी है। अच्छी गेंद, और जब तक विकेट के पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 54। स्ट्राइक पर सदानंद सामना करते हुए शिवम की गेंदबाजी का। स्कोर 54 टोटल। टाइमिंग नहीं हुआ इस बार, थोड़ा सा अपने आप पर भी नाखुश हो गए, मालूम था गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का। साहब 12:32 का बगा। तो 2 ओवर का खेल बाकी है आखिरी, और 2 ओवर में 12 गेंदों में 32 रन, 12 डिलीवरीज 32 रन, 12 गेंदों में 32 रन मैच को जीतने के लिए। बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है। जो जीतेगा रिद्धि वॉरियर्स शेल्डेम क्रिकेट टीम के साथ खेलेगा आने वाला मैच। और हम कॉल कर रहे हैं रिद्धि वॉरियर्स शेल्डेम क्रिकेट टीम कैप्टन, कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। 12 डिलीवरी 32 रन, 12 गेंदों में 32 रन और बॉलिंग में परिवर्तन। 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई साइश आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। रोडेन से अपने बॉलिंग मार्ग पर साइश। 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई स्ट्राइक पर रितेश नाइक, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सदानंद। अब तक 2 छक्के 1 चौका सदानंद की बल्लेबाजी में। पुलर लेन की गेंद, देखना होगा रन के लिए निकले, रन आउट का मौका, आउट। बहुत अच्छी फील्डिंग, अपने फॉलो थ्रू में तेजी के साथ आते साइश गेंद को कलेक्ट किया, सामने बिल्कुल थ्रो किया और तब तक अपने दूर थे क्रीज से विकेट चला गया। चौथे विकेट का पतन हुआ मैदान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए कृष्णा, एक सही समय पर विकेट मिलता हुआ टीम को, एमएससी बोपा तांबो से उगेम क्रिकेट टीम को। साइश अपने बॉलिंग मार्ग पर और न्यू बैटर कृष्णा आ चुके हैं मैदान पर। 17 गेंदों का 11 गेंदों का खेल बाकी है। जो 5वां ओवर। छोटी गेंद हवा में, स्क्वायर लेग पर फील्डर, ओ एक आसान सा कैच छूटा। रामा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, एक आसान सा कैच छूटा और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बड़ी देर के बाद एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर में, आगे बढ़ा 55 टोटल। 55 रन 4 विकेट पर। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, थोड़ी सी हवा में मिड विकेट पर गेंद जरूर थी लेकिन फील्डर से आगे एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 1 रन मिला स्कोर में, इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 56 पर 56। फाइन लेग पर फील्डर है मौजूद, गेंद को फील्ड किया लेकिन जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन इससे बीच पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 57। एक अच्छा ओवर चलता हुआ मैदान पर इस मैच में और अपने बॉलिंग मार्ग पर साइश। यह बड़ा शॉट, क्या गैप में गेंद निकलेगी बाउंड्री लाइन पर जी। 4 रन के लिए वाइड स्लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद चली गई। 4 रन के लिए 4 बहुमूल्य रन मिलते हुए स्कोर में 61 चौके के साथ टोटल आगे बढ़ा। 61 रन पर पहुंचना और टोटल 3 विकेट के नुकसान पर।
रितेश नाइक जो स्ट्राइक पर सामना करते हुए साइश की गेंदबाजी का। एक जोरदार बल्ला घुमाया था विकेट कीपर के पीछे, गेंद फाइन लेग पर, फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग, एक सिंगल, दूसरे के लिए पलटे जरूर थे लेकिन वैभव फील्डिंग कर रहे थे। 22 का इशारा, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इसी के साथ और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। आखिरी ओवर 6 गेंदे और 6 गेंदों में 24 रन। लास्ट ओवर टू गो। रिद्धि वॉरियर्स शेल्डम क्रिकेट टीम कैप्टन आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। रिद्धि वॉरियर्स शेल्डम क्रिकेट टीम, अंतिम ओवर 6 गेंदे और 24 रन। कैप्टन आ चुके हैं रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम के। 6 गेंदे और 24 रन मैच को जीतने के लिए राष्ट्रीय क्रिकेटर्स कोलवाड़े क्रिकेट टीम को। देखना होगा गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं। वैभव आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर इस अंतिम ओवर में। देखना होगा लंबी दौड़ लगाई, अच्छा कैच दिनेश ने पकड़ा और एक विकेट चला गया। इस वैभव जो आखिरी ओवर में पहली गेंद पर एक विकेट मिलता हुआ। और देखना होगा अब नए बल्लेबाज कौन आते हैं। जो शुरुआत रही थी, आक्रामक शुरुआत रही थी, 26 रन जो 4 छक्के और 2 सिंगल के साथ पहले ओवर में 26 रन बने थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मैच में बहुत अच्छी वापसी कही मैं कहूंगा एमएससी मोपा तांबो से उगवेंग क्रिकेट टीम ने। देखना होगा फिलहाल किस तरह से ये मुकाबला समाप्त होता है इन दो के बीच में। साइश आ चुके हैं न्यू बैटर। बॉलिंग मार्ग पर वैभव, नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर साइश। आखिरी ओवर का खेल जारी है मैच का। पुलर लेन की गेंद, खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अब थोड़ा सा दबाव आ चुका है, प्रेशर मुकाबला अब मैदान पर। लेकिन जिस तरह से पावर प्ले में शुरुआत हुई थी, 26 रन बने थे पहले ओवर में। ऑफ टेम्पर ये गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग, रनआउट का मौका रहेगा जी। और एक विकेट चला गया मैदान पर, यानी छठे विकेट का पतन होता हुआ राष्ट्रीय क्रिकेटर्स कोलवाड़ी क्रिकेट टीम का। आउट होकर वापस दीपक नावत नाही आउट होकर वापस कृष्णा। और कृष्णा के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज दीपक आ चुके हैं मैदान पर। दीपक धारगड़कर जो शुरू में तोड़फोड़ की बल्लेबाजी की थी राजेश ने निकले। राजेश के आउट होने के बाद विकेटों का सिलसिला जारी रहा। सदानंद ने 17 रन बनाए। फुल टॉस गेंद मिड विकेट पर, और मिड विकेट पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग मिड विकेट पर। ऐसा लगा कमेंट्री बॉक्स में से कि गेंद निकलेगी सिक्सर 6 रन के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ। फ्लाइटेड गेंद थोड़ी सी फिर से हवा में पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर, फील्डर 1 रन, लेकिन अब सिंगल से फर्क नहीं रहेगा इस मैच में। डॉट गेंद, तो इसी के साथ ये मैच मैदान पर समाप्त होता हुआ। कैप्टन आइए प्लीज एमएससी मोपा तांबो से उगवेम क्रिकेट टीम। और जो अभी अभी मैच समाप्त हुआ, हम हमारे
स्कोरर विष्णु के साथ चर्चा करेंगे कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा इस मैच का। जो मैच समाप्त हुआ अभी अभी, उस मैच के मैन ऑफ द मैच 36 रन जिन्होंने बनाए वो आदित्य मैन ऑफ द मैच, आदित्य मैन ऑफ द मैच। चलिए एमएससी मोपा तांबो से क्रिकेट टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क